स्टेट्स हैं जिनमें बारिश बहुत कम होती है और कई ऐसे सो हेयर इज़ अ टेबल जिसमें आपको सारी स्टेट्स के बारे में एक व्यू मिलता है, इनकी कैपिटल्स, some cities and rivers and occupations and natural vegetables and natural vegetation crops and all. So our first state is Rajasthan. Capital and other cities. The state has Jaipur as its capital. It is also called the Pink City because of the buildings that are painted in this color. Other cities are Mount Abu, known for its Dilwara temples, Jodhpur, Udaipur, and Jaisalmer, known for all palaces. So राजस्थान की कैपिटल सिटी है जयपुर. इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं वो सेम पिंक कलर की पेंट हुई हैं. एंड अदर सिटीज़ भी यहाँ हैं इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है. द दिलवारा जैन टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर ब्यूटिफुल केव्ड मार्बल वर्क. Its river. The river Luni starts from the Aravali Hills, Aravali Range, flows through Rajasthan and end in the extreme west of the region. The Bans and Banganga are other rivers here. Man-made canals bring water from the rivers of Punjab to irrigate fields to grow crops. So यहाँ पे जो rivers हैं, मेन जो रिवर है स्टेट की लूनी, जो कि अरावली रेंज से स्टार्ट होती है एंड तो राजस्थान से होते होते इसका एंड होता है वेस्ट साइड पे. एंड अदर बानस एंड बनगंगा आर अदर रिवर्स एंड मैनमेड कैनल्स हैं यहाँ पे जो पंजाब की रिवर से लिंक करते हैं ताकि यहाँ पे क्रॉप्स की इरिगेशन हो सके. The camel fair at Pushkar in October-November each year is a big event with thousands of the camels and other cattle. Next, natural vegetation. Most of the vegetation is thorny shrubs. There are hardly any trees except in small parts at the foot of the Aravali Hills. बहुत ही कम पेड़ हैं यहाँ पे, mainly thorny shrubs हैं और अगर कुछ हैं भी तो वो अरावली हिल्स के नीचे की साइड्स पे कुछ एरिया में पाए जाते हैं ट्रीज यहाँ पर. नेक्स्ट इज क्रॉप्स. Grains like bajra and jowar are grown. Pulses, oil seeds, cotton, and tobacco are other crops grown here. In the places where water is brought by canals, vegetables are also grown. Next is occupation. Most of the rural people are farmers. Textiles, handicraft, marble work, and camel rearing are other activities that people are engaged in. Many people also work in chemical and other factories. So basically यहाँ पे जो मेन रूरल एरिया के पीपल्स हैं वो फार्मिंग करते हैं. नेक्स्ट अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में भी इंगेज्ड हैं और कई केमिकल फैक्ट्रीज़ में भी वर्क करते हैं. जो मेनली क्रॉप्स यहाँ पे उगती हैं वो बाजरा एंड जौवर है एंड बाकी पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, टबैको भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. नेक्स्ट स्टेट इज़ गुजरात. Capital and other cities. The capital city of the state is named by Mahatma Gandhi. It is called Gandhinagar. Porbandar is more important as it is the birthplace of Mahatma Gandhi. सो गुजरात की जो कैपिटल सिटी है वो महात्मा गांधी के नेम से रखी गई जिसका नाम है गांधीनगर. एंड पोरबंदर भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था. अहमदाबाद इज़ अ सिटी दैट इज़ वेल नोन फॉर गांधी जीज आश्रम एंड फॉर इट्स कॉटन मिल्स. द मिल्क फैक्ट्री एट आनंद इज़ known the world over for cooperative collection of milks. Rivers. The rivers Narmada and Tapi flow across the state. The Sabarmati is another river that has Gandhiji's ashram on its bank in Ahmedabad. And pink flamingos in the watery marshes of the Rann of Kutch. The state has a large variety of birds and animals. A pink flamingo यहाँ पे पाए जाते हैं. एंड नेचुरल वेजिटेशन. देयर आर ओनली स्मॉल scrub forest.
in the northwestern region, as much of the land has been cleared for cultivation and development. In some parts of the east, there are teak and gum trees. The coastal areas have papyrus plant from which a special paper is made. So natural vegetation में यहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एंड ज़्यादातर जो यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लियर कर दी गई है फॉर कल्टीवेशन एंड डेवलपमेंट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न देयर आर टीक एंड गम ट्रीज पाए जाते हैं ईस्टर्न साइड पे एंड पपायरस एक प्लांट होता है जो कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है यहाँ के जिससे स्पेशल टाइप का पेपर बनाया जाता है. नेक्स्ट इज क्रॉप्स. Oilseed cotton and bajra are the main crop grown. Vegetables are also grown where the soil and water is suitable. So ये सारी क्रॉप्स यहाँ पर मेनली उगाई जाती हैं. ऑक्यूपेशन एज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री द पीपल इन द रूरल एरियाज आर इंगेज इन फार्मिंग सेम एज राजस्थान. यहाँ के लोग भी फार्मिंग करते हैं. द स्टेट ऑल्सो हैज़ सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स एंड देयरफॉर मैनी पीपल ऑल्सो वर्क हियर. यहाँ के लोग भी इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज में काम करते हैं. मेकिंग हैंडीक्राफ्ट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. In the salty marshes of the west coast, salt making is an important activity. So यहाँ का जो salty marshes area है वहाँ पर वेस्ट कोस्ट में वहाँ पर सॉल्ट मेकिंग का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है. As you can see in this picture, stitching small mirrors on clothes is a skilled occupation of the women here. Notice them all on the blouse of this ट्राइबल वुमेन. इस तरीके से जैसे इस शो पिक्चर में शो किया हुआ है मिरर वर्क जो होता है वो भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पर क्योंकि स्पेशली वुमेन्स करती हैं उनकी ऑक्यूपेशन है वहाँ पर. नेक्स्ट वन इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव. दमन एंड दीव आर वन यूनियन टेरिटरी but the two places are separated by a stretch of the Arabian Sea. Daman is a coastal town near the southern border of Gujarat. ये गुजरात के साउथर्न पार्ट में है दमन. एंड दीव इज़ एन आइसलैंड ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ गुजरात. ये भी गुजरात के साउथर्न कोस्ट में है बट दीव इज़ अ आइसलैंड. या दीव इज़ एन आइसलैंड एंड दमन इज़ द कैपिटल ऑफ द टेरिटरी. दमन जो है यहाँ की कैपिटल. Both places were old Portuguese colonies and then became a part of India several years after India became independent. So पहले ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो ये इंडियन अंडर आ गई. एंड ड्यू फोर्ट वॉज बिल्ट इन द 16th century जो कि यहाँ पर है. Daman is on an alluvial coastal plain and therefore good for growing crops. So यहाँ पे alluvial coastal plain में होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी जो crops है वो grow होती हैं like rice, ragi, pulses and beans are grown in Daman. The river Daman Ganga flows through Daman and a greater part of Diu is covered with sand and marsh. So bajra and coconut are grown in Diu. Fishing and salt making are also important in Diu. तो मार्शी एंड सैंडी एरिया होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर बाजरा एंड कोकोनट ही ग्रो होते हैं. एंड फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट